I will start with the show called Dance Plus. I've started with that. My TV journey, you can say. In that, I was styling Dharmesh, Raghav, Shakti, and yeah. So many people. That time, I had like all dances, wale people, and it was so much fun to style and design something for them because dancing in something एक ऐसा होता है ना कि बचपन से सबका कुछ ना कुछ एक प्यार होता है सो मुझे आता नहीं है डांस बट मुझे प्यार बहुत था और मुझे ऐसा हो गया कि ये शो मिल गया लाइक वाह चलो लेट्स डू इट सो उसमें क्रिएटिविटी दिखाने के हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं बेसिकली द अपॉर्चुनिटी एंड फिर मज़ा आने लगा उसमें काम करने के लिए सो द सेलिब्रिटीज़ वो लाइक हाँ तो कुछ क्रिएटिव कर कुछ ऐसा बना हिप हॉप टाइप सिंस धर्मेश इज़ लाइक वेरी गुड हिप हॉप dancer. He's from Gujarat. Yes, exactly, Vadodara. So yes, तो उसके साथ ही मैंने अपनी actual experimental men's wear में मैंने एक journey start की, like as a designer and stylist both. Okay. I used to design the outfit for sitting. He was judging show this one, Dance Plus. Right. So वहाँ से मेरी एक journey start हुई. फिर then I styled Raghav Jewel, then Shakti Mohan. So yes, it was like a good from journey. them, yeah. Meet Richa Singh. She's a co-founder of Richa Singh brand and she's our fashion stylist. She's a wardrobe consultant, a fashion designer and a content creator. कभी So Richa, इन सब profiles में से आपको सबसे ज़्यादा enjoyment क्या करने में मिलता है? सबसे ज़्यादा enjoyment मुझे designing में मिलती है. I love making clothes. I love like if I see a body, human body. So पता नहीं ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में बस यही चलता है कि मैं इनको कैसे स्टाइल कर दूँ मैं कैसे डिज़ाइन कर दूँ या फिर सम लाइक कंसल्टेंट मैं इसी तरीके से बनी बिकॉज आई सी द पीपल एंड व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द इवेंट आई बी प्रिपेयर फॉर दैट सो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं एंड दैट्स व्हाट आई लव सो आपने कभी ऐसे फाइंड आउट किया कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है या आप कहाँ से है कि आपको वो चीज़ ब्लूम हुई आप में ओह यस ये मेरी लाइफ का सबसे ही you can say a very different I am totally different from my family मेरा family background is different like political background है and all I'm like my brother my sister they are from IT field some engineers and मैं थी अकेली जो बचपन से मुझ में ऐसा था कि नहीं मुझे आर्ट में जाना है because I used to love how my दादी and my mom used to make things at home like you know all house thing like pillow cover हो गए bed sheets हो गए they used to design all that and katha work and जितने भी सारे embroidery so बचपन से मुझे वो inspiration मेरी दादी और मेरी mom से ही मिली है actual में then I had no idea इसको लाइक यू नो व्हाट इज द स्कोप एंड इसके लिए क्या पढ़ाई करते हैं किस तरीके से करते हैं बेसिकली मैं हूँ एक्चुअली बनारस से ओह फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ओके एंड हाउ डिड यू शिफ्ट हियर टू मुंबई सो इट्स बीन now it's 2025 I came here in 2007 yes okay. So I came here I did my study first like I am from INIFD okay. Andheri yes okay. So वहाँ से मैंने पास आउट किया एंड देन बट या फॉर मी लाइक आई स्टार्टेड आई हैड नो आइडिया मुझे कुछ भी नहीं था मुझे लगा मैं आऊँगी अपना पढ़ाई कोर्स कंप्लीट करूँगी एंड देन आई गो बैक टू बनारस और फिर कुछ सोचूंगी कुछ क्या होगा मुंबई में सेटल होने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था मैंने कुछ भी नहीं सोचा था आई जस्ट वेंट विद द फ्लो बिकॉज मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई in terms of like interning people, doing backstage thing, volunteering like Lakme Fashion Week and all these things I have done all backstage thing. Like मैंने छोटे से छोटा काम भी किया है सारी चीज़ों का बस मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए. So like you know all those experience makes you I think सबका एक collaboration होता है तो आप एक कुछ अलग ही बन के निकलते हो. You've groomed so much. Yes. Okay. So I had like no knowledge about this styling. I like didn't study about styling anything. It was all fashion thing. That's why I love making costume and designing clothes. Styling started with Dance Plus show because of Dharmesh. Dharmesh बहुत ही प्यारा friend है मेरा. Okay. So उसने ही मुझे ऐसे बोला कि तू कर सकती है मैंने बोला पर मैं फीमेल वेयर करती हूँ बोलता उसमें क्या हो गया डिजाइनिंग करती है ना तू मेल से स्टार्ट कर आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट ऑन मी डू इट
I said, wow. ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए Yes, जो हमें इंस्पायर करते हैं. एग्जैक्टली वहां से उसने वो स्टार्ट किया ना, तो वो प्लेइंग फिर सबको इंस्पायर करने लगा कि वाओ ये तो कुछ डिफरेंट ही बन के आ रहा है. फिर राघव इज लाइक अरे मुझे भी करना है, यू विल स्टाइल मी नो, फिर देन शक्ति आल्सो. सो या इट वाज लाइक रियली गुड. एंड वो तो पूरी फैमिली मेरी बन चुकी थी. लाइक फॉर गुड 10 years वी हैव बीन टुगेदर, वर्क टुगेदर, लॉट ऑफ मूवीज, सीरीज, एंड देन या कंटेंट क्रिएटिंग, लॉट ऑफ फन, बहुत सारे मजे किए. सो रिचा, जो लड़कियां अभी न्यू जनरेशन जो मॉडल बनना चाहती है लेकिन वो मॉडल एस्थेटिक्स में फिट नहीं होती है, शायद उसकी हाइट कम है, 5'8" नहीं है, और शी इज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ फेस और समथिंग, बट दे वांट टू गो इनटू दिस. सो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? यार ये चीज है, आई कैन फील इट. हाइट प्रॉब्लम इज देयर, लाइक इन लैक्मे ओनली, लाइक इट्स 5'8" प्लस. होना चाहिए. मैंने भी एक बार ट्राई किया था बट मैंने एज ए मॉडल ऑडिशन होता है उनका, सो आई ट्राइड दैट. सो उसमें वही था, मैं आई वाज 0.5, like half. I'm 5'7" and half. Okay. 0.5 से मैं कम थी, they didn't take me like that, like no. So you have to fit the aesthetics of Yes, it, right? it is. So but अभी ऐसे काफी सारे options we can go with, like heels and footwear, ऐसी चीजें आती और हैं अभी जिसकी तो वजह OBS से- specially for them models आती है, Yes, for XL exactly. clothes. Yeah. That's what- So Richa, tell me, you have done ramp walking, right? Yeah. So how difficult is to carry long heels which are more longer than your confidence? Trust me, it's very very difficult. I don't wear pencil. The day मतलब ऐसे होता है ना कि जब मेरे यहाँ तक आती है कि मुझे पहनना ही पड़ेगा, उस दिन मैं बीमार हो जाती हूँ. मुझसे होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है. But heads off to those models and girls. Like models, I think models का job सबसे ज़्यादा difficult होता है in To terms maintain. of yes, to maintain their body, to maintain their everything. And on the show day, हम तो शाम को आते हैं, वो बेचारे सुबह से आते हैं, rehearsals, this that, then उस पे इतने लंबे लंबे heels और वो भी pencil heels. So really hats off to them. Do you want to share some of your experience with the audience जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे share करना चाहिए? Something good, really good, or something really bad which happened to you, you felt कि यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था. ऐसे experiences यार, so like recently मेरे लिए I've done like 400 plus music videos till now. Okay. So एक वो dancing के उसमें से फिर मैं music के field में actually आ गई. So I've styled a lot of singers too. Vishal Mishra ले लीजिए आप, Zubin Nautiyal, Darshan Rawal, Great. Arijit, and all these singers I have styled. I have done music video for their songs, like so many people. Right. So वो दौरान में शूटिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऐसे होता है कि हाँ एक दिन का शूट है, पूरा गाना निकालना है, फिर 2 दिन का है, कोई बड़ा आर्टिस्ट और बड़ी चीज़ें रहती हैं तो 2 दिन आराम से करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं. तो वो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं बहुत सारे जहाँ पे ऐसे फील होता है कि यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है. वी आर द वन हु मेक्स द लुक, यू नो. आई मीन आई डोंट थिंक सो कि विदाउट मेकअप एंड विदाउट गुड क्लोथ्स यू कैन go anywhere and be anywhere. I agree. Yeah, so उनको तो टाइम दो, टाइम चलो उनको रिस्पेक्ट दे दो थोड़ी सी. सो ये सारे थोड़े बहुत छोटे मोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक्सपीरियंस करने पे ही पता चलेगा. मेरे बोलने से वो सारी चीज़ें वो थोड़ी डिफरेंट चली जाएगी. सो इट्स बेटर Go with the flow. Go with the So flow. रिचा बहुत सारी चीजें करती है. रिचा फैशन डिजाइनर है, रिचा स्टाइलिस्ट है, रिचा वार्डरोब कंसल्टेंट है. अभी रिचा क्या करना चाहती है जो अभी तक नहीं किया है? Oh wow, that's a very good question. Actually ना मैं शायद से बोलूँ कि भगवान मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है. जैसे कि कल हम जो शो किए Yes, मैंने एक yes. रिसेंटली जो ज्यूरी You had worked as a showstopper. Yeah, I mean that was very like I was like I was just going for the judge the thing and stuff. Suvida ji and then the designer of that Yeah. outfit, they asked me to work for him. Like मेरे साथ ही क्यों नहीं हमें चाहिए, हमारा एक स्पेशल कॉस्ट्यूम है जो कलर है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है आपके स्किन टोन से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay. सो द थिंग इज कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं ऐसे मॉडलिंग के भी कोई असाइनमेंट होते हैं मेरे पास,
I do that also. मुझे मजा आता है. But it just gives me, there's nothing कि मैं उससे कुछ कमाती हूँ या मुझे कुछ पैसे मिलते हैं. And content creator, मतलब I love making videos, clicking pictures wherever I go. So kind of travel thing, good scenery and all these stuff. So I put all those things. तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ या फिर ऊपर वाला मुझसे करवाना चाहता है वो चीज़ें हो रही हैं. सो नई चीज जब भी करते हो तो एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है या Yes. कॉन्फिडेंस है? व्हाट डू यू फील? नई चीज़ें व्हेन आई डू एक्चुअली एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंट. एक्चुअली मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती हूँ इफ़ आई डू. मतलब एक टैटू भी बनाने से है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. गिव्स यू विंग्स. Yes. सो रिचा, आप जो यंग है अभी 20 साल 22 साल लड़कियां है जो कोई भी एक प्रोफेशन में जाना चाहती है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेगी कि एनी रिग्रेट्स ऑफ योर लाइफ व्हिच यू फील आई वुडंट हैव डन? सो यू वांट टू टेल द ऑडियंस कि ये किसी में कहीं पे भी कौन से भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? Main thing, yeah, definitely. I would like to शेयर दैट कि मेन थिंग होता है कि फोकस करो जो आपका एम है. पहली बात, आपका एक एम होना चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम. मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक बहुत ही अच्छी पेंटर भी हूँ. सो मैं पेंटिंग करते करते मुझे समझ नहीं आता था कि इसका स्कोप क्या होगा, हाउ विल आई अर्न मनी, इवन इफ आई पुट एग्जीबिशंस एंड ऑल दीज, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. बट इससे भी क्या होगा, किसको पेंटिंग चाहिए रहेगी, सब लोग ऐसे होते नहीं है. तो इसके लिए वो एक एम बनाना बहुत ज़रूरी होता है. वहाँ से मैंने फिर सीखा कि हाँ, आई शुड गो इनटू डिज़ाइनिंग थिंग. सो ऐसे ही सिंगिंग अगर जाना है या फिर कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई उस चीज़ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग. जैसे कि मैंने अपनी जर्नी बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट की है. यू कैन से लाइक 16. व्हेन आई वाज 16 आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड अर्निंग. राइट. Yeah, I started like I was actually handling myself as like in my adulting day, because my parents lives in Banaras. I lives here. My struggle, I won't say. I was enjoying my struggle days, actually, you can say, because there was lot of opportunities. I used to grab everything and do things. तो मेरे लिए यही होगा कि सब लोग जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो उसमें आपको फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके टुवर्ड्स क्या क्या चीज़ें बेसिक एक चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर करो, ताकि आप एक बहुत ही, वो चीज़ें मेरे लिए नहीं थी. आई हैड नो आइडिया. डायरेक्टली मैं जब गई तब मुझे स्टडी के बारे में पता चला एंड चीज़ें पता चली कि ओ वाह, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतनी पढ़ाई होती है. देन यू गेट द नॉलेज, एंड नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट नॉलेज मैं नहीं समझती हूँ, ऐसे बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंसेस भी किए हैं कि नॉलेज नहीं होता है ना, वो इंसान दिख जाता है, वो पता चल जाता है. एंड या सो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों का. एजुकेशन वाइज जो भी चीज़ें हैं वो करना ज़रूरी है. एजुकेशन इज़ वेरी वेरी मस्ट. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट आए जिन्होंने कुछ भी फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं की है. इट्स जस्ट कि उनको ये फैसिनेट करता है कि इट्स सो नाइस टू सी, सो मैम वी रियली वांट टू इंटर्न यू, वी रियली वांट टू असिस्ट यू. वो स्ट्रगल बढ़ जाती है. एग्जैक्टली, वो स्ट्रगल नहीं रहती है, बिल्कुल भी इजी नहीं रहती, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं रहता है. राइट. वो बस एक मे बी वो स्टारस्ट्रक होते हैं या फिर क्या होते हैं, वो उस हिसाब से आते हैं. दे डोंट नो व्हाट टू सोर्स, व्हाट टू, हाउ टू प्रिपेयर द लुक. हमारे सामने कोई भी आर्टिस्ट आ सकता है, बट वी कैन नॉट बी लाइक कि उसको देखते ही रह जाओ और काम भूल जाओ. तो वो मैं ये चीज़ के लिए ज़रूर से बोलूँगी कि कॉलेज जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो भी आप कोर्स या कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी प्रोफेशन का जो कोर्स होता है वो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट स्टडी इट्स डिफिकल्ट. यस, वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर हिसाब किताब भी बहुत बराबर रखना पड़ता है. सब साथ साथ जाता सब साथ साथ सारे एजुकेशन एंड पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है. Thank you, Richa. Thank you so much for giving us time and talking to our audience. Anytime. Thank you. It's my really like first experience to do something like podcasting.